Hi guys, welcome to Manavar Education. In this video, we are going to talk about the most important weekly current affair questions which will be helpful for your examination like SET, Christ, Xavier, CUET, and it will also help you in the interview in other examination. So along with the current affair, we will discuss the static GK questions which are interrelated to this current affair question. So without further delay, let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes and on pan India level, and the counselor will guide you. In case if you want to join us through a website, I will give you the tour guide of the website from where you can have each and everything about the BBA examination. So let's go there. So you have to go to the manavaredu.com. Here you can find the BBA entrance examination. Click on that and you will see the each and everything about the BBA examination. So click on the all BBA exams. तो यहाँ पर आप जाओगे all BBA exam में. So you find out that live classes, self-study programs are available here. Sectional course as well as the mock test, books and e-books, each and everything you can avail from the website. So डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज पोप लियो 14 इज मोस्ट फेमस क्रिश्चियन लीडर फ्रॉम विच कंट्री. तो अभी आपको पता होगा कि पोप फ्रांसिस जो थे उनकी डेथ हो गई है. अब नए पोप बन गए हैं. पोप लियो 14 जो है उन्होंने अपना नाम रखा है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. ओरिजिनल जो इनका नेटिव कंट्री है वो कौन सा है. सो दैट इज अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन. And correct answer is America. So the Vatican has elected a new pope with Robert Francis Prevost elected as the new pope. इनका जो नाम है वो क्या है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट. और लेकिन इन्होंने जो अडॉप्ट किया है वो नेम क्या है, पोप लियो 14. एंड ही हैज चूजन हिज नेम पोप लियो 14 फॉर हिमसेल्फ. और ये जो है अभी फ्रांसिस के बाद नेक्स्ट जो है पोप बन जाएंगे आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी के. Next question is, which Indian state launched the UP Agri and AI Pragya initiative in collaboration with the World Bank in May 2025? तो अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो आए हुए थे इंडिया और यूपी भी गए थे, अजय बांगा. और वहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच में, यूपी और वर्ल्ड बैंक के बीच में. सो यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा, दीज टू इनिशिएटिव has been launched by the UP government in collaboration with the World Bank. So what is this? तो ये किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान. सो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. So Uttar Pradesh launched the UP Agris and AI Pragya initiative on May 9, 2025 in partnership with the World Bank. और ये क्या है, UP Agris is related to the agricultural productivity को increase करना है. यहाँ पर इसका जो मोटिव है वो एग्रीकल्चर को कैसे इन्हांस किया जाए, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए. एंड AI प्रज्ञा इज रिलेटेड टू इन्हांस द स्किल ऑफ द यूथ. स्किल्स को किस तरह से जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए ये AI प्रज्ञा इनिशिएटिव है. Next question is, who recently announced retirement from Test cricket, ending a 14-year long illustrious career? So अभी आपने सुना होगा रिटायरमेंट, बहुत सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं. तो अभी जो है 14 साल के बाद जो है उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है. और ये कौन प्लेयर है जो रिटायर हो गए हैं, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली. एंड द करेक्ट आंसर इज विराट कोहली. So Virat Kohli has officially retired from Test cricket after a remarkable 14-year career that redefined India's presence in the format. और इन्होंने जो है 123 टेस्ट मैच जो है वो खेला था और जिसमें अप्रोक्सीमेटली 9230 रन इन्होंने स्कोर किए विथ 30 सेंचुरीज. तो ये कोहली जो है अब रिटायर हो चुके हैं, इंडिया के कैप्टन भी रह चुके थे. तो इनके बारे में याद रखिएगा, इनके इंपॉर्टेंट चीजें हैं. Next question is, what is the total fertility rate of India's as per Sample Registration System SRS report 2021? So Sample Registration System SR report वो जो है रिलीज कर दिया गया है और इसमें इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है कि एक जो वीमेन है वो अपने एवरेज जो है कितना जो है वो बर्थ जो है करती हैं, तो उनका फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया में एवरेज. 3.0, 1.5, 2.0, 2.5. And the correct answer is 2.0. So according to the Sample Registration System Report 2021, India's total fertility rate is 2.1. और ये जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बताया है.
सबसे ज्यादा अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें तो कहाँ है, द मैक्सिमम इज इन बिहार, सो दैट इज 3.0 जो है सबसे ज्यादा बिहार में है, 3.0 है। और लोवेस्ट जो है आपको दिल्ली और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा 1.4, आपको सबसे ज्यादा बिहार में और सबसे कम दिल्ली और वेस्ट बंगाल में है 1.4 फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन मॉस्को रशिया। तो ये मॉस्को में विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हुआ था, और ये विक्ट्री डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज टू ये जो है वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वहां पे जर्मनी जो हार गई थी, उसमें यूएसएसआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और जिसकी वजह से जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है विक्ट्री डे। और इसमें जो है किसने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, संजय सेठ, पीयूष गोयल, एंड द करेक्ट आंसर इज संजय सेठ। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ हैज रिप्रेजेंट इंडिया एट द 80th विक्ट्री डे हेल्ड इन मॉस्को ऑन 9th मई 2025। तो हर साल 9th मई को जो है ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वाज द चीफ गेस्ट इन द विक्ट्री डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। तो अब जो है क्रिप्टो करेंसी में आप पेमेंट कर सकते हो टूरिज्म में, वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और ये किस गवर्नमेंट ने, किस कंट्री की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, भूटान, सिंगापुर, एल सल्वाडोर, यूएई, एंड द करेक्ट आंसर इज भूटान। So Bhutan launched the world's first national level cryptocurrency tourism payment system in partnership with the Binance Pay and DK Bank जो है इनके साथ पार्टनरशिप करके ये भूटान ने ये लॉन्च किया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई ट्रेवलर जो है वो डिजिटल करेंसी के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकता है कुछ भी, जैसे एयर फेयर, वहाँ पे होटल का बिल, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आप थ्रू डिजिटल करेंसी दैट इज क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI 2025। तो SDI 2025 जो है वो रिलीज कर दिया गया है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी आई है, इंडिया किस रैंक पर था SDI इंडेक्स में, 120, 130, 140, 142। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, रैंकिंग्स और इंडेक्सेस से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग भी है, SDI रैंकिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। तो इंडिया की क्या ये आया है, पोजीशन आया है, एंड द करेक्ट आंसर इज 130। सो अकॉर्डिंग टू UNDP, सबसे पहले तो ये आपको पता करना है कि ये रिलीज कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको रिलीज करती है, और 2025 की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें 193 में इंडिया का पोजीशन 130 है, और आइसलैंड जो है इसमें नंबर 1 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। Next question is who has been named the best men's football player by the AIFF for the 2024-2025 season। So 2024-2025 में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो है अपना बेस्ट मेंस फुटबॉलर और बेस्ट वीमेंस फुटबॉलर अनाउंस कर दिया है। तो मेंस कैटेगरी में किसको ये अवार्ड दिया गया है, विशाल केत, ब्रिजन फर्नांडिस, वीरामुथु, शुभाशिष बोस, एंड द करेक्ट आंसर इज शुभाशिष बोस। So the All India Football Federation has felicitated the winners of its annual award for the 2024-2025 football season। और यहाँ पर मेंस कैटेगरी में तो सुभाषिष बोस को दिया गया है, और वीमेंस कैटेगरी किसने जो है उनको मिला है, तो तेलंगाना सौम्या गागुलोथ हैज बीन एडजस्टेड द बेस्ट वीमेंस फुटबॉल प्लेयर जो है इनको दिया गया है, सौम्या गागुलोथ को यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज हो चुकी है, और इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग आई है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 3rd मई को, और उसमें जो है आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी अब रिलीज कर दिया गया है। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, प्रेस के फ्रीडम कितना है इंडिया में, 151, 157, 156, 158, एंड द करेक्ट आंसर इज 151। So World Press Freedom Index was released by the Paris-based international NGO। तो सबसे पहले कि ये रिलीज कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसको रिलीज करता है, आपको ये भी चीज याद रखना है। दूसरा कि ये इंडिया की रैंकिंग कितनी है, सो दैट इज 151। और नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा ये था कंट्री, सो दैट इज नॉर्वे इज एट द फर्स्ट पोजीशन, एंड इरिट्रिया इज एट द बॉटम। तो इरिट्रिया सबसे लास्ट पे, नॉर्वे सबसे फर्स्ट पे, और इंडिया का पोजीशन 151 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th मई। तो 11th मई को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे, वर्ल्ड एजुकेशन डे।
एंड द करेक्ट आंसर इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे. सो 11th मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑनर्स इंडियाज रिमार्केबल स्ट्राइड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये जो है आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को 11th मई को सेलिब्रेट किया जाता है. और इस बार जो है वो थीम क्या था, दैट इज यंत्रा युगांतर for advancing new technology research and acceleration. So this was the theme of the national technology day. आप यहाँ पे नेशनल साइंस डे भी देख रहे होंगे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th ऑफ फरवरी. 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. और ये क्यों किया जाता है, बिकॉज सीवी रमन जो है इन्होंने रमन इफेक्ट जो है वो डेवलप किया था इस दिन, इसलिए नेशनल साइंस डे 28 ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर से जो रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन कुछ है, इंपॉर्टेंट चीजें उसको भी हम डिस्कस करेंगे. जो अभी हमने करंट अफेयर देखा था उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको भी हम अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमने इंक्लूड किया ताकि करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी रेडी होता चला जाए. सो विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रिटन वुड्स ट्विंस. तो ब्रिटन वुड्स ट्विंस जो है वो किसको कहा जाता है इसमें, अभी हम देखेंगे कि ब्रिटन वुड्स ट्विंस होता क्या है. IBRD एंड IMF, IDA एंड IFC, IDA एंड MIGA, IMF एंड IDA. एंड द करेक्ट आंसर इज IBRD एंड IMF. तो ये जो है आपको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं. दीज टू बॉडीज आर वेयर एस्टैब्लिश्ड ऑन इन 1944 में जो है इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. और ये जो है आपको ब्रिटन वुड्स ट्विंस के नाम से, क्योंकि वहां ब्रिटन वुड्स में जो है इन दोनों बॉडी की एस्टैब्लिश किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रिटन वुड्स ट्विंस इन 1944. और इन दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम है, एक ही जगह पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वर्ल्ड बैंक. और IMF का कहां है, दैट इज इन वाशिंगटन DC में जो है इन दोनों का हेडक्वार्टर है. क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रेसिडेंट है IMF की, और अजय बांगा जो है आपको वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है. तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो स्टैटिक पोर्शन वर्ल्ड बैंक और IMF से आपको पता होना चाहिए. अभी IMF ने जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन भी दिया है, तो ये चीजें आपको इंडिया ने उसमें वोटिंग से एब्सटेन किया था, तो ये चीजें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वन द फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975. तो क्रिकेट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी था, तो क्रिकेट से स्टैटिक पोर्शन अगर देखते हैं तो वर्ल्ड कप 1975 जो पहला वर्ल्ड कप था ODI वर्ल्ड कप, उसको किस टीम ने जीता था, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट इंडीज. सो वेस्ट इंडीज हैज वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाई डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल. और ये हुआ कहां था, सो दैट वाज प्लेड इन इंग्लैंड में जो है वो खेला गया था, और वेस्ट इंडीज ने पहला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया था. सेकंड वर्ल्ड कप 1979 आल्सो वन बाय वेस्ट इंडीज, एंड 1983 इंडिया वन द वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज को हराकर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता. इंडिया अब तक 2 बार जीत चुका है, दैट इज 2 टाइम्स इन 1983 एंड इन 2011. और ऑस्ट्रेलिया सबसे मैक्सिमम टाइम, दैट इज 6 टाइम ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप. लास्ट टाइम इंडिया में ही उसने इंडिया को हराया था, दैट इज प्लेड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात. वहां पर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंडिया को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो दुनिया में सबसे छोटी कंट्री, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तुवालू, रिपब्लिक ऑफ नॉरू, वेटिकन सिटी, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो. एंड द करेक्ट आंसर इज वेटिकन सिटी. So it is located in the continent of Vatican City, Europe. This country is considered to be the smallest country in the world. और population भी बहुत कम है, मोस्टली 840 और 1000 के अप्रॉक्स जो है population है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कैथेड्रल मिलेगा, मोस्टली आपको पोप वगैरह जो है क्रिश्चियनिटी के जो आपको फादर्स वगैरह होते हैं वही उन्हीं का जो है रेसिडेंस ज्यादातर देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इन ब्रिटिश इंडिया वाज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक. अभी हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखा था और किस तरह से ब्रिटेन जो है वो कटेल करता था हमारे प्रेस फ्रीडम को. जब ब्रिटिश का जहां पे रूल था तो उसमें बाल गंगाधर तिलक जो है इसमें से किस न्यूज़पेपर को जो है वो पब्लिश करते थे, स्वदेश मित्रन, द हिंदू, केसरी, इंडियन मिरर. एंड द करेक्ट आंसर इज केसरी. सो केसरी वाज अ मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1881. और ये जो है आपको केसरी और मराठा दो न्यूज़पेपर था, मराठा भी न्यूज़पेपर था, मराठा, और ये जो न्यूज़पेपर था मराठा दैट वाज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में पब्लिश करते थे, और केसरी जो था दैट वाज इन मराठी. और इसीलिए इनको जेल भी हो गया था, 6 इयर्स का जेल भी दिया गया था. उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिश को अपने न्यूज़पेपर में, तो इनको जेल भी किया गया था, मांडले जेल में इनको भेज दिया गया था 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द कोड नेम ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा.
तो हिरोशिमा पे जो है एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, उसका कोड नेम क्या था? उस बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय, फैट मैन, थिन बॉय, बिग बॉय। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर में नहीं था, लेकिन जापान ने क्या किया 1941 में पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। उसके बाद जो है अमेरिका भी वॉर में आ गया। देन आफ्टर दैट अमेरिका हैज डेवलप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब एंड दे वॉन द जापान, क्या एक्सक्लेट कर लो, डिस्क्लेट कर लो, नहीं तो बॉम्ब जो है गिरा देंगे, लेकिन जापान माना नहीं कि उसके पास बॉम्ब है। और आखिरी में अमेरिका ने पहला बॉम्ब दैट इज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन 6th of August 1945, दैट इज ऑल्सो नोन एज हिरोशिमा डे। लिटिल बॉय के नाम से वो बॉम्ब था और उसको जापान पे गिरा दिया। नेक्स्ट जो बॉम्ब था दैट इज फैट मैन के नाम से जाना जाता, फैट मैन, और वो गिराया था नागासाकी पे। आपको नेक्स्ट 9th अगस्त को जो है फैट मैन गिराया नागासाकी पे। उसके बाद जो है सरेंडर कर दिया गया था, जापान ने सरेंडर कर दिया। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो ब्रिटिश अमेरिका वगैरह जीत गई थी। So these are the important weekly current affair questions which we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like this video. And if you have any queries regarding BBA examination, so you can write in the comment section. We will get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.